हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। Heavenly, gracious, merciful Lord. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रगुजार हैं Lord, we are thankful for these moments that you have blessed us इस with. लम्हे के लिए जिससे तूने हमें फैज़याब किया। तेरा शुक्र करते हैं। For you are holy and gracious, Lord. तू अजीम और मेहरबान है। And Father, today we ask that open our hearts and open our minds और to आज हम understand. मिन्नत करते हैं कि हमारा दिल और दिमाग खोल के हम तेरी बातों को समझ सकें। Lord, we are not able, we are not that capable to understand your scriptures. हम तेरे कलाम को पूरी तरह समझ नहीं सकते, हम में ये अहलियत नहीं है। But Father, we ask the help of our helper, Holy Spirit. लेकिन हम अपने मददगार जो तूने हमें दिया पाक रूह की मदद को मांगते हैं। Lord, may your voice speak from here today काश तेरा पाक रूह हमसे आज बात करे and bless each one of और हम us. सबको बरकत दे, In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। Well, happy Sabbath to everyone. आप सबको सब्बत मुबारक हो। The topic for today is the Revelation Son of Man. आज का जो عنوان है वो है मुकाशफा का आदमजाद। What's the topic? क्या عنوان है जी? Amen. Amen. And we will read Revelation chapter हम 14 मुकाशफा 14वां बाब खोलेंगे and the verse will be verse 14 to 15. और 14वीं आयत से 15वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। And it's written in the और Bible. लिखा है खुदा के कलाम में, Then I looked and behold a white cloud. फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद बादल है And on the cloud sat one like the Son of Man, और उस बादल पर आदमजाद की मानिंद कोई बैठा है, having on his head a golden crown, जिसके सर पर सोने के ताज and in his hand a sharp sickle. और हाथ में तेज दरांती है। So what was on his head? सर पे क्या है जी? Golden crown. सोने के ताज। And what is in his hand? हाथ में क्या है? A sharp sickle. तेज दरांती है। And another angel came out of the temple, फिर एक और फरिश्ते ने मकदस से निकल कर crying out with a loud voice to him who sat on the cloud. उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा, Thrust your sickle and reap, अपनी दरांती चलाकर काट, for the time has come for you to reap, क्योंकि तेरे काटने का वक्त आ गया। for the harvest of the earth is ripe. इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई। Beloveds, अजीजों, God has always spoken to his people, अजीजों, खुदा ने हमेशा अपने लोगों से कलाम किया है giving them whatever relevant truths they needed to hear in the past. और हमेशा जो माजी में भी सच्चाई उन्हें दरकार रही है, खुदा ने उनके साथ वो सच्चाई बांटी। Three angels' message is Jesus' final message of mercy. ये तीन फरिश्तों के वसीले से यीशु मसीह का रहमत से भरा हुआ आखिरी पैगाम है। Three angels' message is a call that leads us not trusting in our own righteousness, but in the righteousness of Jesus Christ. तीन फरिश्तों का पैगाम ये बताता है कि हम में से कोई अपनी रास्तबाजी पर तकिया ना करे सिवाय यीशु मसीह के रास्तबाजी के। Three angels' message is the message to justify us. देखिए, तीन फरिश्तों का पैगाम हमें रास्तबाज ठहराने के लिए है। It is a call to sanctify us. ये पैगाम हमें बुलाता है तकदीस के लिए And at the end of the time to glorify us. और आखिर ये पैगाम हमें खुदा के हजूर सुरखरू होने के लिए बुलाता है। And now is the time to prepare. और अब ये वक्त है कि हम तैयारी पकड़ लें। We must choose Christ. देखिए, हमें अब फैसला करना है यीशु मसीह को चुनने का, To surrender to him and to obey him. उसे अपना आप सौंपने का हमें फैसला करना है और उसकी फरमा बरदारी करने का फैसला करना है। Remember that the choices that we will make today will indeed impact the choices that we'll make in the final crisis that are ahead of us. देखिए, आज जो हम चुनाव करेंगे ये हमारा चुनाव हमारे उस चुनाव पर असरअंदाज होगा जो हम मुश्किल घड़ियों में बुरे दिनों में करेंगे। Revelations 14 message मुकाशफा 14वें बाब का जो पैगाम है is Jesus' final message of
mercy to the fallen and rebellious world. ये यीशु मसीह का मोहब्बत से भरा हुआ आखिरी पैगाम है उस बागी और खुदा से दूर नस्ले इंसान के लिए। There will come a day एक दिन आएगा, when every human being on the planet Earth एक दिन जब इस सारे जमीन पर हर एक मर्दोजन will make their final and irrevocable decision that will be either for Christ or against Christ. जो हर बंदा है इस जमीन पर वो अपना फैसला करेगा और वो ला तब्दील होगा, या तो वो खुदा के लिए अपना फैसला करेगा या यीशु मसीह के खिलाफ अपना फैसला करेगा। And this revelation's message of Christ's righteousness, और ये जो आखिरी पैगाम है मुकाशफा का, यीशु की रास्तबाजी का पैगाम, it delivers us from the condemnation of sin. देखिए ये मैं गुनाह की सजा से छुड़ाने के लिए Revelation's message of Christ's righteousness यीशु मसीह का पैगाम जो मुकाशफा में है, delivers us from the grip of the sin in our lives. ये हमें छुड़ाता है उस गुनाह से जो हमारी जिंदगियों में है। This message will echo and then re-echo throughout the earth. देखिए ये पैगाम जब तक वो आ नहीं जाता, इसकी गूंज बाज गश्त सुनाई देती रहेगी। And the promise of Jesus that is in Matthew chapter 24 verse 14, और यीशु मसीह का वो वायदा जो मत्ती 24वें बाब में है, that this gospel of the kingdom will be preached in all the world. एक खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी। This promise was fulfilled in Revelation chapter 14 and verse ये 6. वो वायदा है अंजीली जो मुकाशफा 14वें बाब में पूरा होता है। That the gospel proclaimed to every nation, ये हर कबीले, हर उम्मत में, tribe, tongue and people. हर अहले जुबान में ये अंजील सुनाई जाएगी। 3 times in Revelation, मुकाशफा की किताब में 3 बार in Revelation chapter 22, Jesus says that he is coming quickly. मुकाशफा की किताब के 22वें बाब में 3 बार यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं जल्द आने वाला And हूँ। in the context of his second coming, देखिए जब हम उसकी दूसरी आमद के तनाजर में देखते हैं the Lord adds and he says in Revelation chapter 22 and verse 11, और जब हम इस तनाजर में देखते हैं, मुकाशफा 22:11 में लिखा है, it's written that he who is unjust, let him be unjust still. जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, He who is filthy, let him be filthy still. जो निज्जस है वो निज्जस ही होता जाए, He who is righteous, let him be righteous जो still. रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, He who is holy, let him be holy still. जो पाक है वो पाक ही होता जाए। This climax of revelation ये मुकाशफा का जो अरूज है, moves every person to choose either for Christ or against हर Christ. एक शख्स को तहरीक देता है कि वो यीशु मसीह को चुने या यीशु मसीह को रद्द करे। Every day, हर रोज even in our little choices, देखिए, हर रोज छोटे से छोटा चुनाव जो हम करते even हैं, in the little things that we do, छोटी से छोटी बात में जो हम इंतखाब करते we हैं, are choosing either for Christ or against Christ. हर रोज या तो हम खुदा के लिए फैसला करते हैं या यीशु मसीह के खिलाफ फैसला And करते हैं। it is not possible और that, ये मुमकिन नहीं है that a person who is continually doing something wrong कि वो शख्स जो मुसलसल गलत चुनाव कर रहा है will suddenly at the final crisis come downside of Jesus. कि जब मुश्किलें आएंगी, जब मुसीबतें आएंगी तो वो शख्स अचानक से दुरुस्त फैसला कर लेगा। No, that's not देखिए possible. ऐसा होना नामुमकिन है। Now and every day, अब और हर दिन we must choose to be faithful to Christ हमें वफादार रहने का मसीह के साथ फैसला करना पड़ेगा and to His commandments. और उसके हुक्मों की पालना करना पड़ेगी। For it is written in the Bible that this is the love of God that keep His क्योंकि commandments. बाइबल में लिखा है कि खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। But the question is, मगर सवाल ये है, are we keeping His commandments? क्या हम उसके हुक्म मान रहे हैं? Are we loving Him? क्या हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं? One of the authors, she writes in her book, एक मुसन्नफा ने अपनी किताब में लिखा and she says that Jesus does not change the character at His coming. कि यीशु मसीह
मसीह अपनी आमद सानी पर आके लोगों का किरदार नहीं बदलेगा। The work of transformation must be done now. देखिए, अगर किसी ने तब्दील होना है तो तब्दीली का वक्त ये है। Our daily lives हमारी रोजमर्रा की जिंदगियां are determining our destiny. हमारी मंजिल का तयन कर रही हैं। My beloveds, अजीजाने मन, the life that Jesus spent on this earth, यीशु मसीह ने जो जिंदगी इस कुरे अर्ज पर गुजारी, the price that he paid for our sins, जो कीमत उसने हमारे पापों के लिए अदा की, the victory that he won after his resurrection, वो फतह जो उसने सलीब पर मरने के बाद जिंदा होके पाई, is all done so that we may become one with Jesus Christ. सिर्फ इसलिए थी कि हम सब यीशु मसीह के साथ एक हो जाए। हालेलुया। So that the relation that was broken may be built again. ताकि जो रिश्ता टूट गया था उसकी मौत के वसीले से जुड़ जाए। And Revelation chapter 14 contains the key text in regards to Lord's last coming. और देखें, मुकाशवा 14वां बाब वो एक कुंजी है जो हमारे सामने इस बात को खोलती है कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। It is the Lord's last day message to his people and to the world. देखिए, ये यीशु मसीह का वो आखिरी पैगाम है दुनिया की आखिरी उस नस्ल के लिए जो अब मौजूद है। Mark chapter 14 and verse 62. और मरकस 14वें बाब की आयत नंबर 62 में लिखा है, You will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. तुम इब्ने आदम को कदर मुतलिक खुदा की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। Whom will you see? किसको आप देखोगे? The Son of Man. इब्ने आदम को आते देखोगे। Jesus used the word Son of Man to refer himself 82 times in the Gospel. 82 बार अनाजील में यीशु मसीह ने अपने आप के लिए जो लफ्ज है इब्ने आदम इस्तेमाल किया है। It seems to be his favorite title. मुझे यूं लगता है कि यीशु मसीह को अपने आप को इब्ने आदम कहना बहुत बाबरकत लगता था। He used this expression as an endearment to identify with us. और उसने अपने आप को जब इब्ने आदम कहा तो उसने ये बात साबित की कि वो हम में से एक है। He is the Savior who understands us. वो बात ये कह रहे थे कि मैं वो नजात दहिंदा हूँ जो तुम्हें बेहतर तौर पर जानता हूँ और समझता हूँ। He is the Savior who have went through all of the temptations and passed through our trials. इब्ने आदम खुद को कह के उसने कहा कि मैं वो नजात दहिंदा हूँ जो तुम्हारी हर मुश्किल में से खुद गुजरा हूँ और तुम्हारे दुखों से आगाह हूँ। He is the Son of Man who is returning to take us home. ये वही इब्ने आदम है जो वापस आ रहा है ताकि हमें अपने साथ आसमान में ले जाए। The same Jesus वही यीशु मसीह who lived among us. जो हमारे दरमियान ऊंचे पर चढ़ाया गया, He became one like us. जो हमारी तरह बना। But remember, मगर याद रखिए, yes, he became like us, हाँ वो हमारी तरह बना, but also unlike us. लेकिन वो फिर भी हमारी तरह नहीं था, Because he did not sin. इसलिए कि उसने कोई पाप नहीं किया। He was like us, वो हमारी तरह था, but he was unlike us. लेकिन वो हमारी तरह नहीं भी था। And Jesus, the Son of Man, और यीशु मसीह जो इब्ने आदम है, is coming again with glory with his angels. वो अपने फरिश्तों के जलाल में दोबारा आ रहा है। It will be the time when he will divide the sheep from the goats. और जब वो आएगा तो वो बकरियों को भेड़ों से अलग करेगा। The destiny of all the nations of the humanity will be decided on that day. उस वक्त तमाम नस्ल इंसान की मंजिल का फैसला उन्हें सुनाया जाएगा। And John states, और यूहन्ना लिखते हैं, he says that I looked and behold a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man. फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद बादल है और उस बादल पर आदम जाद की मानिंद कोई बैठा है। And when Jesus ascended to the heaven, और जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, Bible says that a cloud received him
नजरों से बदली ने छिपा लिया। And those angels, they declared to these amazed और disciples. शागिर्द जब हैरानगी से देख रहे थे तो हैरानगी में पड़े शागिर्दों से फरिश्तों ने कहा, This same Jesus यही यीशु who was taken up from you into the जो heaven तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, will so come in the like manner as you saw him go into heaven. इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। How will he come? कैसे आएगा? Secretly? खामोशी से, खुफिया तौर With पर। a rapture? क्या वो आएगा कि किसी को पता नहीं चलेगा? Like a thief? क्या चोर की तरह आएगा? No. नहीं, ऐसा नहीं है। What is the Bible saying? बाइबल जो फरमाती है वही सच He है। will come in the like manner as you saw him going. इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे जाते आसमान पर देखा He है। was taken with the clouds, वो बादलों के साथ उठाया गया, with the angels, आसमान के फरिश्ते उसे ले गए। and he will come again with the clouds, with the वो angels. बादलों के साथ आएगा, वो फरिश्तों के साथ आएगा। And there is a divine message that is in this text. और इस आयत में एक इलाही पैगाम है। Do you want to hear that? सुनना चाहते हैं? Bible is very beautiful. बाइबल बहुत खूबसूरत है। And it is very crystal clear if you want to understand ये it. शीशे की तरह शफाफ है अगर आप समझना चाहते हैं। But with the helper of Holy Spirit. लेकिन पाक रूह के बगैर मुमकिन नहीं है। I said there is a divine truth in this. मैंने कहा बाइबल के अंदर इलाही सच मौजूद है। And it is written that this same Jesus, और लिखा है कि यही यीशु the Son of Man, will come. जो इब्ने आदम है वो आएगा। Jesus is the Son of Man. अजीजों, यीशु मसीह इब्ने आदम है। Who is the Son of Man? कौन इब्ने आदम है? Amen. आमीन। The one who walked in the dusty streets of Nazareth. ये वही है जो नासरत की उन गर्दो गुबार वाली गलियों में चला। The one who ministered in the crowded streets of Jerusalem. ये वही है जो हजूम से पुर उन यरूशलेम के बाजारों में मुनादी करता The रहा। one who healed the sick in the village of Israel. जो इस्राएल के अगुवाओं में जाकर उनके बीमारों को चंगा करता The रहा। one who preached on the grassy sides of the Galilee. ये वही है जो गलील की उन सब्ज पहाड़ियों पर मुनादी करता The रहा। one who died वो जो मर गया, and raised on the third day तीसरे दिन जी उठा is coming again to take you and me with और him. फिर आ रहा है ताकि मैं आपको दोबारा आसमान पर लेके जाए। हालेलुया। So that where he is, you may also be. ताकि जहां वो है वहां उसके साथ हम भी हो सके। And John the Revelator describes और Jesus. मुकाशवा का मुसन्निफ कहता है यीशु मसीह को यूं, He says the Son of Man, आदम जात, having on his head a golden crown, लिखा है जिसके सर पर सोने का ताज and in his hand a sharp sickle. और हाथ में तेज दरांती है। The word crown, देखिए ये जो यहाँ पर लफ्ज आया ना, क्राउन, ताज, the word crown means Stephanus. और जो ग्रीक में इसका मतलब है ताज का, वो स्टिफनोस है। And this means it's a victor's crown. और इसका मतलब है ये एक फाते का ताज है। When someone won an important contest, जब कोई उस वक्त में कोई खास काम करता और जीत जाता he was given a Stephanus. तो उसको स्टिफानस दिया जाता, यानी उसको वो ताज दिया And जाता। that represented the crown of honor, और of ये glory, ताज उसकी फतह का, उसके जलाल का निशान होता and of his victory. और उसकी फतह का निशान होता कि ये बंदा फाते है। Remember, Jesus once wore the crown of thrones, आपको याद है एक दफा उसने कांटों का ताज पहना था, the crown that symbolized shame, जो उसकी नदामत और शर्मिंदगी को जाहिर the करता है, crown that symbolized the mockery. जो उसका मजाक उड़ाने का निशान था। Yes, he was once despised and rejected by हाँ, men. एक बार वो धत्कारा गया, रद्द किया गया उस ताज को पहने हुए। He was the one who was spat upon, beaten. एक वक्त
था कि जब उसे धत्कारा गया, उसके मुंह पे थूका गया। But now, मगर अब after becoming victorious over death, जब वो सलीब पर और मौत पर फातेह हुआ, he wears the crown of glory. अब वो जलाल का ताज पहने And हुए he हैं। comes as the King of Kings and अब the वो Lord of बादशाहों का Lords. बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। हालेलुया। This is the Son of Man. ये वो इब्ने आदम है। The angel comes from the presence of God खुदा के हजूर से एक फरिश्ता आता है in the glory of the temple and says, और वो आसमानी मकदस के जलाल के साथ आता है। for the time has come for you to reap, वो कहता है तेरे काटने का वक्त आ गया है, for the harvest of the earth is ripe. क्योंकि जमीन की फसल पक गई है। He meant to say that go and get your children and bring them home. उसका मतलब था जा, खुदा कह रहे हैं मेरे बच्चों को जमीन से मेरे पास लेके आ। It is the time. ये वो वक्त आ गया है The harvest is fully ripe. कि जमीन की फसल बहुत पक गई है। In the Bible, बाइबल में Jesus uses the illustration from the agriculture repeatedly. देखिए in the यीशु New मसीह ने Testament. बारहा ज़रायत से जो है वो टर्म्स ली हैं और इस्लाहात ली हैं। He used symbol of the ripening harvest उन्होंने ये इस्तेलाह इस्तेमाल की कि कैसे पकी हुई फसल को काटा जाता था, to illustrate the growth of the seed of the gospel in the lives of the कि people. कैसे अंजील का बीज लोगों की जिंदगियों में बढ़ता है। Now the ripening of the golden grain represents the one who are transformed by grace. देखिए यहाँ पे जब अच्छे बीज की कटाई होती तो इसका मतलब है ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अंजील का बीज बोया गया और ये अच्छे दाने हैं। They are the one who are motivated by love, ये वो हैं जो यस्सु की मोहब्बत से तहरीक पाए हुए who हैं। are living an obedient life, ये वो हैं जो यस्सु मसीह के साथ वफादार और फर्मा बरदारी की जिंदगी जीते and हैं। they are the one who are living for the glory of the Christ ये वो name. हैं जो सिर्फ यस्सु मसीह के जलाल के लिए जी रहे हैं। Their hearts are one with the heart of Jesus, उनका दिल यस्सु मसीह के दिल के साथ थक थक करता है। and their will is the will of Jesus. उनकी मर्जी यस्सु मसीह की मर्जी है। Are you the one? क्या आप वही हैं? Is your heart same as the heart of Jesus? क्या आपका दिल यस्सु के दिल के साथ ही धड़कता है? Is your will one with Jesus? क्या आपकी मर्जी यस्सु मसीह की मर्जी के साथ एक है? It's your time to think. अब आपका ये वक्त है बताने का। In Revelation chapter 14, मुकाशवा 14वें बाब में there are two harvests. दो तरह की कटाइयां हैं। How many harvests? कितनी कटाइयां हैं मुकाशवा 14वें बाब में? Two. How many sides are here? कितनी तरफ है यहाँ पे? एक सिमत ये है और एक सिमत ये है। So there are two harvests. Easy देखिए to remember. दो कटाइयां हैं, दो फसलें हैं। So there is the harvest of the golden grain, अच्छे दानों के काटने की फसल है and this golden grain represents the righteous. और ये जो अच्छे दाने हैं ये खुदावंद यीशु मसीह के रास्तबाज बच्चे हैं। And just taking it as a symbol, the other harvest is the harvest of grain. अपने पे नहीं लेना। दूसरी जो कटाई है, दूसरी जो फसल है It is the harvest of grapes, वो अंगूरों की कटाई है। and it represents the unrighteous people. वो नारास्त लोगों की नुमाइंदगी करते हैं अंगूर। The Bible says that both of the harvest are fully ripe. देखिए बाइबल में लिखा है दोनों तरह की जो फसलें हैं वो पक के तैयार हो गई हैं। Every seed is now fully mature. हर एक बीज जो बोया गया था अच्छा या बुरा वो पक के तैयार हो गया। And Bible says that another angel came out of the altar, और बाइबल में लिखा है फिर और एक फरिश्ते ने कुर्बानगाह से जो निकला, who had the power over fire and cried with a loud voice to जिसका him, आग पर इख्तियार था, उसने बड़ी आवाज से पुकारा। to him who had a sharp sickle, saying उसने तेज दरांती वाले से बड़ी आवाज से कहा, that thrusting your sharp sickle अपनी तेज दरांती चलाकर काट and gather the clusters of the wine of the earth, for her grapes are fully ripe. और अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। The angel said the harvest is ripe. फरिश्ते ने कहा
पक गए हैं। Sin has reached its limits. गुनाह अपनी हद अबूर कर गया है। Rebellion has crossed the line of God's mercy. खुदा की रहमत की हद जो है वो बगावत ने पार कर ली है। As evil and bad the things could be, is going to be more worse. बदी जितनी हो सकती थी, बदकार उतने बुरे हो चुके हैं। And a loving God, और रहीम खुदा, He has done everything that He could do to save the उसने humanity. वो सब कुछ कर लिया है जो वो इंसानियत को बचाने के लिए कर सकता था। Even including to offer Himself, He have done. यहाँ तक कि अपने बेटे को सलीब पर मरवा भी डाला है ताकि उन्हें बचा ले। He sacrificed Himself on the cross. यहाँ तक कि उसने खुद को इन्हें बचाने के लिए कुर्बान भी कर डाला है। For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। What more could God have done to save you and इससे me? ज्यादा हमारा खुदा हमारे लिए और क्या कर सकता है? Beyond the cross, what He can do. सलीब से आगे वो और किस तरह की मौत मर सकता It था? was we who were to be rejected, but He was rejected. हमें रद्द किया जाना था मगर वो हमारी जगह रद्द हुआ। It was we who were to be spat upon, but He was the हम one पे who was थूका spat. जाना चाहिए था मगर उस पे थूका गया। Can we bear today if someone spat on us? कितनों में बर्दाश्त है कि इस पे थूका जाए तो वो बर्दाश्त कर ले। Can we bear it? क्या आज भी बर्दाश्त कर सकते? Even if someone just say us a single word, we get hyper. कई दफा तो एक बात से हमारा पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। We can't bear what He bear for us. उसने वो बर्दाश्त किया हमारे लिए जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। He wore the crowns of the thrones. कांटों का ताज पहना। Do you know what's the pain of that thrones? उनका दर्द आप शायद जानते हो। We cannot even bear the small pain of the needle. शायद हमें किसी सुई की चुभन भी तंग कर दे, But God died for us. मगर खुदा हमारे लिए मसलूब। And when He was about to die, और जब वो मरने के करीब था, He is so beautiful वो इतना खूबसूरत लग रहा था that He gave the hope to His followers. कि उसने अपने पैरोकारों को मरते हुए उम्मीद दी। He said, no, 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 let your hearts not be troubled. तुम्हारा दिल ना घबराए। He will be raised on the third day, He promised them. मैं वायदा करता हूँ कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। Just so that me and you may not lose the faith in Him. इसलिए उसने वायदा दिया था कि मैं और आप अपना ईमान ना खो दें, So that we may not be the one who will say, where is your God? ताकि हमें ये सुनने का मौका ना मिले या हम ना कहें मेरा खुदा कहाँ है। But we be the one, yes, I believe in the living बल्कि God. हम उस तरह के लोगों में हो जो कहें कि हाँ मैं अपने जिंदा और अपने जलाली यीशु पर ईमान रखता हूँ। He gave the hope to us. उसने हमें उम्मीद से भरा है। There was nothing more grace can do to redeem. इससे ज्यादा फजल वो हमें बचाने के लिए क्या कर सकता था? He gave the grace to the people who repeatedly rejected the Holy उसने Spirit. उन पर भी अपना फजल किया है जो आज मुसलसल पाक रूह को रद्द कर रहे हैं। And here's the urgent prophetic message of Revelation chapter 14. यहाँ पे एक बहुत अहम तरीन एक नबूवती पैगाम है यीशु की तरफ से आज के लोगों के लिए That every seed has grown and has ready for harvest. कि आज इस वक्त हर तरह का बीज, अच्छा बीज और बुरा बीज पक के तैयार हो गया The है। grain is fully ripe इस तरफ जो गेहूं है वो पूरी तरह तैयार है and the grapes are also fully और ripe. दूसरी तरफ जो अंगूर है वो पूरी तरह तैयार है कुचले जाने के लिए। The grain represents the people of God. गेहूं जो है वो नेक लोगों को की अलामत है, The people of God who खुदा के represents the image of God. जिनकी जिंदगियों में यीशु की शबीह झलकती है। The people of God who represents His image of compassion
compassion and mercy. ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगियों में यीशु मसीह का तरस और यीशु मसीह की सूरत और सीरत The झलकती है। people of God who represents the love of God ये towards वो the लोग हैं universe. जो ईमानदारों के लिए मसीह की मोहब्बत खुद से दिखाते हैं। And on the other hand, और दूसरी तरफ the children of evil, बदी के फर्जंद हैं। they represent lust. वो हवस के फर्जंद हैं, वो हवस की नुमाइंदगी They करते हैं। represents the jealousy and hate. वो नफरत और वो गुस्सा जो अपने अंदर से दिखाते हैं, ये बदी के फर्जंद हैं। On which side are you? हम किस तरफ हैं? The grain is fully ripe and the grapes are fully ripe. देखिए, गंदम भी पक के तैयार हो गई है और अंगूर भी पक के तैयार हो The गए हैं। character of Jesus is revealed in the one group and character of Satan in the other group. यीशु मसीह का किरदार एक ग्रोह के अंदर नुमाया है और बदी का इब्लीस का किरदार दूसरे ग्रोह के अंदर And नुमाया है। there will be the time that the whole universe will see the harvest. और एक वक्त आएगा कि पूरी कायनात इस फसल को देखेगी They will see the God's revelation of righteousness. और खुदा की रास्तबाजी का मुकाशफा हर एक शख्स को दिखाई देगा आखिरी The दिनों में। righteousness of God will be revealed to all the people. पूरे लोगों के सामने यीशु की रास्तबाजी इन लोगों से अयां होगी And on the other hand, the wickedness, the evil, और दूसरी तरफ बदी के फर्जंदों से and their lawlessness will be displayed in front of the angels and men. इनके अंदर खुदा के हुक्मों की नाफरमानी फरिश्तों के सामने और इंसानों के सामने पूरी तरह अयां The होगी contrast between good and evil, और अच्छाई और बुराई के जो दरमियान फर्क है, between right and wrong, असली और नकली के दरमियान, गलत और सही के between दरमियान, obedience and जो disobedience, फर्क फरमाबरदारों और नाफरमानों के दरमियान है, it will be crystal clear among the वो universe. आखिरी दिनों में शीशे की तरह कायनात के सामने शिफाफ होगा। You cannot hide. हम या आप छुप नहीं सकते, Our works cannot be hidden. हमारे काम छिपे हुए नहीं रह सकते। The eyes of the Lord are upon us. खुदा की नजरें हम पर लगी हुई हैं। He is looking on each and every choices that we are daily आज वो making. हर एक शख्स के उस चुनाव पर नजर किए हुए है जो वो हर रोज करता है। What are your choices today? आज आपके क्या इंतखाबात हैं? Are you making the right choice or the wrong choice? आप अपनी जिंदगी में दुरुस्त फैसले कर रहे हैं या गलत फैसले? Are your choices for Christ or against Christ? क्या आपके फैसले मसीह के लिए हैं या मसीह के खिलाफ हैं? Why don't you close your eyes for a moment क्यों चंद लम्हों के लिए दुआ में आंखें बंद कर लेते हैं and think और upon सोचिए your life, अपनी जिंदगियों में upon the choices that you are making, उन इंतखाबात पर जो आप कर रहे हैं, upon the decisions that you are taking, उन फैसलों पर गौर करें जो आप कर रहे हैं, upon the thoughts that you are thinking, उन ख्यालों पर गौर करें जो आपके मन में है upon your mobile phones and the apps and the videos that you're watching. और जो आप इन ऐप्स के वसीले जरिए वीडियोस देखते हैं उन पर गौर कीजिए। Think on the people through whom you talk to. जिन लोगों से आप गुफ्तगू करते हैं उनके बारे सोचिए। Are they right or are they wrong? क्या आपके ये फैसले दुरुस्त हैं या गलत हैं? Are you among the harvest of the grain or the harvest of the grapes? आप किस में हैं? अच्छे बीज में या अंगूर के गुच्छों में शामिल हैं? The harvest is fully ripe, दोनों फसलें पक के तैयार हैं and there is the Son of Man with his sharp sickle, और इब्ने आदम अपनी तेज दरांती के साथ आके काटने को है and he is ready to cut. और वो आने वाला है ताकि ये फसल काटे। Have you decided to be on the Christ of Jesus? क्या आप यीशु मसीह की सिम्मत में आने का ऐद कर चुके हैं? There is no time. वक्त अजीज़ाने मन नहीं है जाया करने के If लिए। you are still thinking that there is a lot of time in the coming of हो Jesus, सकता है आपके मन में हो कि बड़ा वक्त अभी आमद सानी में you बाकी might be है। thinking that the promise of the Lord is delayed. हो सकता है आप सोच रहे हो कि बड़ी देर से सुन रहे हैं, वायदे में ताखीर है अभी, But no, there is no time. लेकिन अब वक्त जाया करने के लिए नहीं Look रहे। into the world around you. There are अपने earthquakes, there इर्द are गिर्द की thunders. दुनिया को देखें कि किस तरह से भूचाल और आफात ने दुनिया को चारों तरफ से घेर लिया है। These are the signs of the end days. ये आखिरी दिनों के निशानात हैं जो यीशु ने दिए And in these end days, और इन आखिरी अय्याम में in the crisis that
are final in this universe. जो आफत इस दुनिया पर आके मंडला रही हैं, Are you in the protection of your Savior? क्या आप अपने मसीह की मुहाफ़ज़त में हैं? He has promised you, beloveds, अगर हैं तो उसने अजीज़ों वायदा किया है that let your heart not be कि troubled. तुम्हारा दिल ना घबराए। Are you thankful to His promise? क्या आप उसके इस वायदे के मशकूर हैं? Have you hold to the hand that He has put forward for you? क्या आप उस हाथ को थामना चाहते हैं जो वो आपकी तरफ बढ़वा रहा है? If yes, अगर हाँ है then you can stand upon your feet to say thank you to your Lord. तो फिर आप शुक्रगुजारी के लिए अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। To the Lord who have saved you from the wickedness of the world. जिसने दुनिया की बदी से आपको बचाया है। Why don't you say thank you to the one who have saved you from the grip of sin? क्यों आप नहीं कहते खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ तूने मुझे बदी की गिरफ्त से बचाया? Why don't you thank Him for dying at your place? क्यों आप नहीं कहते मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तू मेरी जगह हुआ? Why don't you thank Him for each and everything He has given to you? क्यों आप उन सब नेकियों के लिए शुक्रगुजार नहीं हैं जो उसने आपके साथ की हैं? Heavenly Father, आसमानी बाप, Lord, you can see the voices of your people. बाप तो अपने लोगों की उठी हुई आवाजों को सुन रहे हैं। Lord, you can see the thankfulness of their hearts. बाप तो अपने लोगों के दिल से निकलने वाली शुक्रगुजारी की सदाएं सुन रहे हैं। Lord, yes, we have once rejected you. हाँ, एक वक्त था कि हमने तुझे रद्द किया। Lord, yes, we once went away from you. हाँ, हम तुझसे दूर चले गए, बागी हुए। Lord, we rejected the voice of Holy Spirit. हमने तेरे पाक रूह की आवाज को रद्द किया। But Father, your voice of Holy Spirit was constant. पर तेरे पाक रूह की आवाज ने हमें तेरी तरफ फिर खींचा क्योंकि वो मुसलसल आती रही। Lord, you didn't let us go. अरे बाप, तूने हमें हमारे हाल पे नहीं छोड़ दिया। You didn't let us fall. तूने हमें गिरे हुए नहीं रहने दिया। Yes, we were in the bottom of the ocean. हाँ, हम गुनाह की अथाह गहराइयों में गिर गए थे। Father, the world of the sin was surrounded by us. बाप, दुनिया के गुनाहों में हम गोताज़न हो गए थे। The wrong choices that we constantly made. गलत चुनाव हमने कर लिए थे The consequences of the sin that we have faced. और हमने गुनाह के उन गलत फैसलों के नतीजे भुगत लिए हैं। Lord, even in the darkest valley of our life, you were बावजूद there. बदी की उस तारीकी में खुदावंद तूने हमें छोड़ा नहीं है। Even in the dark nights, your light shined अरे upon us. बाप, हमारी तारीक रातों में भी तेरा नूर हमारे गिर्द चमकता रहा। Lord, you took away all of our sins. अरे बाप, तूने हमारे सारे गुनाह उठाए हैं And you blessed us with your forgiveness. और अपनी माफी से हमें बरकत याफ्ता किया है। Lord, you took away all of our shame and तूने guilt. हमारी सारी शर्म और एहसास से जुर्म उठाया है And you gave us your peace and और तूने अपना satisfaction. इत्मीनान और अपनी तसल्ली हमें दी है। Lord, I pray that fill your people today with your love. अरे बाप, मैं मिन्नत करती हूँ कि तू अपने लोगों को अपने इत्मीनान से भर दे। Lord, if they have not yet realized their wrong choices, may your Holy Spirit make them realize. अरे बाप, अगर अभी तक तेरे लोगों ने इस दुरुस्त फैसले नहीं किए तो तेरा पाक रूह उनकी मदद करे। Lord, if they are still walking upon their own will, may your Holy Spirit correct them. अगर वो अभी तक अपनी मर्जी पे चल रहे हैं तो तेरा पाक रूह ने तेरी मर्जी के मुताबिक चलने का फजल दे। Lord, the clothes that you have covered them, if they are sportful, may your blood clean them. अरे बाप, जो रास्तबाजी का लिबास तूने ने पहनाया था अगर वो गंदा कर बैठे हैं तो उसे एक दफा फिर उनके लिए धो दे। Lord, if our thoughts are evil, please correct them. अगर तेरे लोगों के ख्याल इस वक्त निकम्मे हैं तो तूने पाक साफ कर दे। If our ways are wicked, Father, please bring us to the अगर तेरे righteousness. लोगों की राहें बदी की राहें हैं तो तूने वापस लौटा ला। Father, if there is hate in our hearts, अगर दिलों में नफरत है, Lord, if there is the sense of jealousy in अगर us, दिलों के अंदर हसद है Father, take away the seed. और ये बुरे बीज जड़ से उखाड़ दे। Father, bless them with your love. अपनी मोहब्बत से मामूर कर दे। Bless them with the spirit of your love. अपनी मोहब्बत के रूह से भर दे। With the brotherly
चाहते। For there is no time, Lord. अब खुदावंद हम जानते हैं, जान गए कि कोई वक्त बाकी नहीं रहा। My beloveds, if you want to repent from your sins today, अजीजा नेमन, अगर आज आप अपने गुनाहों से मुंह मोड़ना चाहते हैं, तौबा करना चाहते you हैं, have realized that there is no more time, अगर आप महसूस कर चुके हैं कि अब जाया करने का और वक्त नहीं बचा, then you may repeat after me. तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, My Jesus, मेरे यीशु, Lord, I know that I have been going by my own ways. मैं जानता हूं कि मैं अपनी राहों पर चलती या चलता रहा हूं, But today I am here. लेकिन आज मैं तेरे कदमों में हूं। Lord, I surrender myself to you. मैं अपना आप तुझे सौंपता हूं। Take me, Jesus. मुझे बाजुओं में भर ले यीशु। I am broken, but fill me with your love. मैं टूट चुका हूं और मुझे तू अपनी मोहब्बत में इकट्ठा कर दे। And if you believe it, अगर आप ईमान रखते हैं, if you believe that your Jesus have held you, अगर आप महसूस करते हैं ईमान से कि उसने अपने बाजुओं में आपको गिरोह को थाम लिया है, if you believe that he has raised you up, अगर उसने आपको ईमान रखते हैं कि उठा लिया है, if you believe that he has lifted you up from your shame and guilt, उसने आपको एहसासे जुर्म से और आपकी बदी से उठा लिया है, अगर आप ईमान रखते हैं, then you may say with a loud voice, Amen to तो आप your आवाज़ Jesus बुलंद Christ. कह सकते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन।